Hey everybody. Hi, hello everyone. How are you guys doing today? I hope y'all are able to hear me. Audio clear है ना? Alright, so this is a batch that I'm starting specifically for people who are preparing for CAT and IPMAT or IPMAT in fact, and 2022 and 2023. I call this batch as animation from the scratch batch. Yes, this batch is called from the scratch batch. That basically means we'll be covering everything that is in quant. CAT के quant में जो भी है सब कुछ अपन एकदम scratch से cover करेंगे. Yes. That basically means whether you are a math student, अगर आप 11th 12th में math लिए थे, या you are a non-math student, आपने if you took commerce or commerce without math, या biology लिए थे, या any of that, or even if you are someone who hasn't been in touch, है ना, in touch with math for a very long time, तो भी आप ये सेशन अटेंड कर सकते हो. ठीक है, सो एडवांस लेवल, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. एडवांस तक भी जाएंगे बट एकदम बेसिक से. ठीक है. हेलो राहुल, गुड आफ्टरनून. हाय रिया, गुड आफ्टरनून. माय नेम इज अमित सुराना. आई एम एन एरोनॉटिकल इंजीनियर. मेरे बारे में जान लो पहले, ताकि आपको पता चले कि मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्सन. ठीक है, तो मेरा नाम अमित सुराना है. आई एम एन एरोनॉटिकल इंजीनियर. दैट डज नॉट मीन दैट आई was someone who was very comfortable with math. Definitely not. Yes, I scored about 40% in my 12th math standard. ये मैं openly बोलता हूँ and I'm not ashamed of it. 12th math मेरा CBSE था. बोर्ड एग्जाम मेरे को 40% के आसपास आए थे. ठीक है. So this does not justify that. ठीक है. I have 7+ years of experience. This will definitely justify how I teach and what I teach. Whatever I am is because of my experience. है ना. तो 7 साल से ज़्यादा मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है. अनअकैडमी में मैं आई एम almost for 2 years now. Yeah, I joined in the month of April. तो अप्रैल से लेके अभी ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले. अप्रैल 2019 में मैंने ज्वाइन करा था. ओके, एंड आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 2.5 लाख स्टूडेंट्स, विच इज एक्सक्लूसिव ऑफ व्हाट आई हैव टॉट ऑन अनअकैडमी. अनअकैडमी में ऑब्वियसली उससे भी ज़्यादा हो गए होंगे, राइट. तो ऑलमोस्ट 1 लाख स्टूडेंट्स आई हैड प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2020 एंड 2021. अभी मैं 2022 के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ. ओके, now this is my telegram group. ये मेरा telegram group है. yes, under the name of Surana Live Cat. इसमें 21 के एस्पिरेंट्स भी है, 20 के एस्पिरेंट्स भी है, 22 के एस्पिरेंट्स भी है. आप भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट. आई विल गिव यू ऑल नोटिफिकेशंस हियर. अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस मैं यहाँ पे शेयर करूँगा. देन आई विल बी शेयरिंग सम टिप्स हियर. yes, I will be sharing the notes of the sessions here. Apart from that, sometimes I will be sharing for some topics, I'll be sharing daily practice sheets, or I'll be suggesting some websites, or I'll be suggesting some apps that you could follow that will help you improve your quant. ठीक है. Hi Priya, hello Om, hi Diksha, good afternoon. ठीक है, तो ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो. पीपल हु डू नॉट हैव टेलीग्राम, प्लीज गो अहेड एंड डाउनलोड इट. टेलीग्राम डाउनलोड करो, ज्वाइन कर लो. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे भी मिल जाएगा. यस, करें चालू. शैल वी स्टार्ट विथ फ्रॉम द स्क्रैच बैच फॉर CAT and IPMAT aspirants. So whether you're preparing for CAT or you're preparing for IPMAT, it doesn't matter. As long as you're preparing for 22 and 23, you can. Some of you might still have the doubt that can I give CAT 22 or should I be giving waiting for 23? Please understand, if you are planning on giving CAT 22,
then you should graduate before May 2023. If you want to give CAT 23, then you should graduate before May 2024. समझ में आ रहा है? मई के पहले अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हो नेक्स्ट ईयर मई के पहले अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हो तो आप उस साल का कैट दे सकते हो. Does this make sense, everyone? ठीक है. सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे को पूछते रहते हैं लोग कि सर मैं कब दे सकता हूँ, अभी दे सकता हूँ क्या, नहीं दे सकता हूँ. सो दैट इज वाई. गुड. चलो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अ फ्यू थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट कैट. कैट में you will be getting an on-screen calculator. Yes, what is an on-screen calculator? A calculator which you cannot carry anything inside. ये आपको जानना जरूरी है. You cannot carry anything inside in your CAT center, test center में आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते except for your admit card. Now because of COVID protocol आप अपना sanitizer, hand gloves, mask वगैरह लेके जा सकते हो. Otherwise that was also not allowed back then. तो स्टेशनरी वो लोग प्रोवाइड करेंगे, पेन एंड रफ शीट वो लोग प्रोवाइड करेंगे. कैलकुलेटर का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है लोगों का कि कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं है. अगर है तो क्या मैं अपना कैशियो साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जा सकता हूं? नो, यू कैन नॉट कैरी एनीथिंग ऑन योर ओन इनसाइड. यू विल बी प्रोवाइडेड विथ एन ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर जो ऐसे आप टॉगल कर सकते हो. सो ऐसा बटन आपको दिखेगा टेस्ट प्लेटफॉर्म में, ऐसा बटन आपको दिखेगा. इफ यू क्लिक ऑन दिस इज द काइंड ऑफ कैलकुलेटर दैट यू विल सी. ठीक है, समझ गए? एंड दिस इज एन ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर. मतलब आप अपने हाथ से बटन दबा के नहीं कर सकते. you'll have to do it through the platform only. Okay, now some of you might think कि सर अगर कैलकुलेटर अलाउड है then why do we really need calculation techniques? Some of my old teachers told me that I will have to remember first 100 squares, first 100 square roots, first 100 cubes, cube roots. Why should I remember anything? Or why should I focus on calculation tricks? ये क्या help करेंगे मेरे? Yes. So let me tell you a little bit more about the calculator. Then you will be able to understand कि why did your teacher or anyone or even why am I asking you to do all this. ठीक है. तो first thing, the calculator is capable of doing only simple calculations. That is, if you look at the calculator, ऐसा है. कैलकुलेटर में क्या क्या ऑप्शन है देखो. You can add numbers, which is a very good thing, blessing in disguise. आप subtract कर सकते हो, multiply कर सकते हो, divide कर सकते हो. Apart from these, you can find out the square roots. You can find out the reciprocals. If you know how to use the percentage function, then yes, you can use the percentage function also. But basically percentage function क्या करेगा? Divide by 100 करेगा. So this is a waste of a function and a button. ठीक है. इसके अलावा if you know how to use these buttons, then yes. Otherwise I wouldn't really bug you with how to use these functions. ठीक है. एंड ऑन कैलकुलेटर के ऊपर अलग से एक सेशन करेंगे, अलग से एक यूट्यूब वीडियो में डालूंगा जहां पे आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ द कैलकुलेटर. ठीक है. ओके, दैट बीइंग सेड, तो इट कैन ओनली डू सिंपल कैलकुलेशंस. मतलब इफ यू वांट टू फाइंड आउट पावर, लेट्स से अगर आपको इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज 3 to the power 4, द ओनली थिंग द कैलकुलेटर विल हेल्प यू इज विथ व्हाट? if you want to do 3 into 3 into 3 into 3. yes, ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा. this is something that you will have to manually do, which will give you what? 81. अगर 3 to power 4 तो ठीक है. अगर 3 to the power 14 हुआ तो आप बैठ के कितना करोगे? 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 करते रहोगे, right? so in such cases is why we normally suggest people to remember this. for example, अगर आपको 2 to the power 20 करना है, 2 to the power 20 करना है, तो you'll basically have to keep multiplying 2 with itself 20 times. मतलब क्या? 2 into 2 into 2 into 2 into. At some point what will happen? At some point either you will lose count. आप count छोड़ दो कि मैंने 15 करे थे कि 16 2 multiply करे थे. You wouldn't know.
नंबर 2, अगर आप 2 के बदले फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ 2 इफ यू बाय मिस्टेक क्लिक 6 और इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई यू बाय मिस्टेक क्लिक डिवाइडेड बाय, पूरा कैलकुलेशन गया, मतलब विल हैव टू डू इट फ्रॉम द स्क्रैच. यस, so instead of that if you remember the first 10 powers of 2, अगर आपको पता है कि 2 to the power 10 is 1024, then you can directly find out 2 to the power 20 by doing what? 2 power 10 whole square, which is 1024 the whole square. समझ में आ रहा है? जो आप डायरेक्टली अपने कैलकुलेटर से कर सकते हो. सो कैलकुलेटर इज गुड, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग, बट यू नीड टू नो टू हाउ टू यूज इट. यस, सो 1024 into again 1024 will fetch you your answer. Got it, everybody? So these are the functions and it can only do simple calculations. Matlab if you want to do some complex calculation, it's not going to help you. Number 2, you will have to simplify the calculation before feeding it into the calculator. मतलब क्या, आपको the calculator will by default follow BODMAS rules. Yes, by default it will follow the BODMAS rule. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये करना है, लेट्स से इफ यू वांट टू डू 22 into 33 plus 12, ये करना है आपको. ओके, लेट्स से 33 plus 12 पूरा into 22, ये करना है आप. दिस इज व्हाट यू वांट टू डू, राइट? Now what will happen? Sometimes what happens is when you don't put it correctly, let's say अगर आप ऐसे कर रहे हो, you want to do 12 into 22 first and then 33, तो पहले आप 12 into 22 करोगे, you will get the final answer. On that you will add 33. But अगर आप इसको ऐसे डायरेक्टली डालोगे, if you directly put this, मतलब कैसे, if you put 33 plus 12 into 22, बवाल मच जाएगा. समझ में आ रहा है? तो BODMAS रूल्स वगैरह फॉलो करना पड़ता है आपको. कैलकुलेटर अपना जो प्रोग्रामिंग है वो फॉलो करेगा. हाउ यू वांट द कैलकुलेशन टू गो, यू विल हैव टू डिसाइड दैट. ठीक है, तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा. नेक्स्ट, द कैलकुलेटर इज ओनली माउस ऑपरेशनल. इसका क्या मतलब है? नॉट जस्ट कैलकुलेटर, कैट का कहीं पर भी, कैट टेस्ट में कहीं पर भी आप कीबोर्ड यूज नहीं कर सकते. ठीक है, कीबोर्ड का यूज नहीं कर सकते. एंड द रूल्स आर सो स्ट्रिक्ट, ध्यान से सुनो, रूल्स आर सो स्ट्रिक्ट कि अगर आप कीबोर्ड यूज किया, आपने अगर कीबोर्ड यूज किया, गलती से भी अगर कोई बटन दबा दिया कीबोर्ड में, देन योर टेस्ट विल गेट लॉक्ड. आर यू गेटिंग इट? अगर आपने गलती से भी कीबोर्ड पे हाथ लगा दिया, देन योर टेस्ट विल गेट लॉक्ड. दैट बेसिकली मीन्स यू वोंट बी एबल टू कंटिन्यू विद द टेस्ट एट ऑल. Yes, most centers do not keep a keyboard, but अगर है तो भी आप उसे forbidden place में रख दो, ऐसी जगह पे रख दो कि आप उस तरफ देखो ही नहीं. बुझे? Yes, done. Next, so अगर आपका कीबोर्ड अलाउड नहीं है, सिर्फ माउस अलाउड है, तो आपको हर छोटा छोटा कैलकुलेशन के लिए एवरी टाइम यू विल हैव टू टेक योर माउस, क्योंकि आप ऐसे कुछ सॉल्व कर रहे होते हैं, पेन से आप कुछ सॉल्व कर रहे हो, आपको कैलकुलेशन के लिए माउस उठाना पड़ेगा. इस पे क्लिक करो, कैलकुलेटर आएगा, फिर यू विल हैव टू डू 2 + 2 = 4, ये 4 आएगा, फिर आप वापस माउस को छोड़ोगे, पेन उठाओगे, पेन लिख के करोगे. अंडरस्टूड? दूसरी चीज, माउस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, यस, माउस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो कर्सर हिलता है, राइट, उसका जो प्रॉक्सिमिटी है, दैट्स नॉट वेरी श्योर. फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी 2 को प्रेस करने के लिए मेरे को कर्सर को इधर लाना पड़ता है ना, आई हैव टू ब्रिंग द कर्सर हियर, बट समटाइम्स इफ आई डोंट ब्रिंग इट हियर, अगर इधर चला गया तो वो या तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा या फिर 5 रिकॉर्ड हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मेरे को 0 इंक्लूड करना है, तो मैं 0 को यहां पे क्लिक करे बिना अगर थोड़ा सा भी इधर क्लिक कर दिया तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल. मतलब आप कैलकुलेटर यूज करते समय कुछ और नहीं सोच सकते. यू कांट बी थिंकिंग एनीथिंग एल्स. यू हैव टू गिव योर 100% कॉन्सेंट्रेशन टू द कैलकुलेटर. यस,
तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अगर आप अपना 100% कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेटर पे दे रहे हो तो इट इज डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग. यस, इन दैट वे इट इज टाइम कंज्यूमिंग, है ना, कि मतलब बाकी सब कुछ काम छोड़ो, सिर्फ कैलकुलेटर में देखो और ध्यान से देखो कि क्या कर रहे हो. यू कांट बी डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट वन टाइम. यस, एंड द लास्ट थिंग इज व्हाट, फ्लो डिसरप्शन. मतलब क्या, आप अपने पेन से पेपर पे सॉल्व कर रहे होगे, आपको पेन ड्रॉप करना है, माउस उठाना है, कैलकुलेशन करना है, वापस माउस छोड़ना है, कैलकुलेशन लिखना है. अगर मल्टीपल कैलकुलेशंस हुए तो यस, लेट्स से इफ यू हैव टू डू 22 into 33 plus 44,000 divided by 1200 minus 1800 square plus अगर ऐसे करना होता है, लेट्स से इफ दिस इज द काइंड ऑफ कैलकुलेशन, देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक करना पड़ेगा. पहले 22 into 23 करो, 22 into 23 उसका 33, फिर उसका सोल्यूशन लिखोगे, प्लस फिर नेक्स्ट वापस यू विल हैव टू डू दिस कैलकुलेशन, देन यू विल हैव टू डू दिस कैलकुलेशन, देन दिस कैलकुलेशन. उसके बाद आप सारे वैल्यूज आपके पास रहेंगे, फिर आपको ये वैल्यूज वापस टाइप इन करने पड़ेंगे टू फाइंड द आंसर. यस, तो टेक्निकली क्या हो जाएगा, इसमें आपका फ्लो जो है डिस्टर्ब हो जाएगा. सो टू अवॉइड ये, अभी मतलब दिस इज नॉट समथिंग दैट कैन बी कंप्लीटली अवॉइडेड, बट टू डू आवर बेस्ट टू रिड्यूस दिस फ्लो डिसरप्शन. रिड्यूस करने के लिए, अवॉइड तो नहीं कर सकते, कैलकुलेशन बीच में आया मतलब फ्लो तो डिसरप्ट होना ही होना है ना, बट इनको थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन ईदर डू मेंटल कैलकुलेशन और यू कैन डू मैनुअल कैलकुलेशन. मेंटल मतलब क्या, यू डू इट इन द माइंड. मैनुअल मतलब क्या, यू डू इट ऑन द पेपर, बट it will definitely not be as time consuming it as doing it on the calculator. Clear hai? So in this session what we are going to cover are some prerequisites. Matlab we will be covering some calculation techniques जो आपको ये सब टाइम वेस्ट करने से अवॉइड करेगा. या बट रिमेंबर, मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि रिमेंबर फर्स्ट 100, रट्टा मार लो, remember first 100 perfect squares, no, or do Vedic mathematics. क्या, how many people know how to do calculation using Vedic mathematics? Anyone? किसी को पता है क्या, या किसी ने सुना है क्या वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में? Anyone? ये सब कुछ मैं नहीं सजेस्ट कर रहा हूं, आई एम नॉट सजेस्टिंग दिस. ओके, व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज other apart from the ones that we know, how else can we do the calculation, or slowly how can we improve our calculation speed. ठीक है, hello Surbhi, good afternoon. Yes Surbhi, what doubt do you have? What doubt do you have? चलो ठीक है, आप आराम से पूछो डाउट, अपन आगे बढ़ते हैं. So we'll be dealing with some basic calculation techniques in lecture 1. ये lecture 1 है, इसमें अपन बेसिक्स करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन. फिर L2 में अपन थोड़ा सा एडवांस्ड करेंगे, दैट इज फाइंडिंग स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स. ठीक है, एडवांस्ड नहीं, एडवांस्ड. So addition, subtraction, multiplication, division is what we are going to see here today. Addition, simple concept. Addition कब use होता है? When you have to add 2 terms, 3 terms, multiple terms. तो ये data based questions में बहुत ज़्यादा use होता है, जहाँ पे आपको बहुत सारे datas दे दिए हो, right? For example, let's say that you've been given a sequence of numbers, a set of numbers. You will have to add all of this: 31 plus 33 plus 38 plus 32 plus 37 plus 31. इन सबको आपको ऐड करना है. नाउ फॉर दिस, इसके लिए अगर आप ये सब छोड़ के आप कैलकुलेटर उठाओगे तो क्या हो जाएगा, काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपका फ्लो डिसरप्ट हो जाएगा. ये कैलकुलेशन जो अभी आप मैनुअली भी कर सकते हो. सब में से आप 30 निकाल लो कॉमन, क्या हो गया
30 इंटू 630 है, 180 अलग से हो गया। इसके अलावा अब क्या है आपके पास, लुक एट दिस, 8 + 2 10, 3 + 7 10, 1 + 1 2, ये कितना हो गया, 180 + 20 200, 202 इज द सम। आया समझ में? Did you see what we did here? So this is basically what we are going to do. We are going to balance out the numbers. तो यहां पे देखो, here you have 37 + 49. अब आप नॉर्मली अपने स्कूल में जो सिखाया था 37 + 49, 9 इन द माइंड, 7 इन द फिंगर, आफ्टर 9 ये सब कर सकते हो, या आप डायरेक्ट ऐड करके कैरी करने वाले में से हो तो वो भी कर सकते हो। कैन डायरेक्टली राइट 86, या बट उसके अलावा व्हाट एल्स कैन यू डू दैट विल अवॉइड डूइंग दिस? क्या कर सकते हो, ये 49 है, क्या ऐड करना इजी है? व्हाट इज इजी टू ऐड? 37 प्लस अ नंबर दैट एंड्स विथ 9 और 37 प्लस अ नंबर दैट एंड्स विथ अ 0। कभी भी नंबर 0 से एंड होता है तो उसको ऐड करना इजी होता है। एग्रीड? हाँ ना गाइस? तो अपन क्या करेंगे इसको, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट 49 वी विल कॉल इट 50। अगर ये 50 होता तो 37 + 50 कितना होता, 87। क्योंकि मैंने एक 1 एक्स्ट्रा ऐड किया था उसे मैं रिमूव कर दूंगा, आई विल गेट 86। इधर दिस और यू कैन बैलेंस आउट। ये अपन ने क्या किया था, अप्रोक्सीमेशन किया था, 49 को अप्रोक्सीमेट करके 50 किया। यस, अदर वे, अनदर वे इज बैलेंसिंग आउट। ये 37 है, ये 49 है, इसमें से मैं एक 1 निकाल के इसको दे दूं तो, इधर से मैं एक 1 निकाल रहा हूं और इसको दे रहा हूं तो क्या हो गया, 37 से 1 गया 36, 49 में 1 आया 50, 36 + 50 86, इजी होता है। गॉट इट? करेक्ट क्रिक लवर, 86 इज द राइट आंसर। या कैन यू गाइस ट्राई द नेक्स्ट वन? चलो अगला वाला ट्राई करके देखो, 12 + 85 + 19। Give this a shot. 12, 85, 19. What will you do here? 12 है, 19 है, so look at this. If यहां से मैं एक 1 निकाल के इसको दे दूं तो ये 20 हो जाएगा। So what do I have? 11 + 20 है ना, I have यहां पे 11 और यहां पे 20, जो कि कितना हुआ, 31 हो गया। Now I have, if I add 30, I will get 115. अगर मैं 31 ऐड करता तो क्या आता, 116। Are you getting this? क्लियर है? 126 नहीं है, चेक करो गाइस, 126 नहीं होगा। 12 + 19 is 31, 31 + 85 is 116, not 126। अभिषेक क्रिक लवर, ठीक है, हाँ, वेरी गुड क्रिक लवर, अक्षय, बहुत बढ़िया। 160। तो यहाँ पे क्या है, डूइंग इट मेंटली। ये सब कुछ आप इधर पेपर में नहीं करके दिमाग से करोगे, एवरीथिंग मेंटली। मतलब क्या, 11 और 19 30 है, एक एक्स्ट्रा 31 में से 30 दिमाग में रखो, यस, 1 को अलग कर लो। 30 + 80 इज 110, सो 30 + 85 विल बी 115। ये जो 1 आपने अलग रखा उसको मिला लो, 116, खत्म। हाउ अबाउट द नेक्स्ट वन? यहां पे देखो, यहां पे क्या करोगे, व्हाट विल यू डू हियर? ऐसे केसेस में बेस्ट थिंग टू डू वुड बी, हंड्रेड्स को अलग रखो, हंड्रेड्स के प्लेस के जो वैल्यूज है उन्हें अलग रखो, अलग से ऐड कर लो उन्हें। यस, सो 3, 4, 9, 16 अलग से है, सो वी हैव 1600 सेपरेटली। अब बाकी के वैल्यूज देखो, 64 + 46, 64 + 36 100 होता है, तो ये 110। यस, ये अनदर 100, 210 और ये 57, सो 210 पे अगर 57 ऐड हुआ तो क्या हुआ, 267। एक 1 एक्स्ट्रा है तो 266 मेरे को ऐड करना पड़ेगा। दिस इज 1866, पीस ऑफ केक। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? मैंने क्या किया, पहले आई टुक ऑफ द हंड्रेड्स प्लेस, पहले ही ऐड कर दिया मैंने उसको।
यस, हंड्रेड्स प्लेस को मैंने अलग से पहले ही ऐड कर दिया, फिर बाकी के वैल्यूज को मैं कंबाइन कर करके ऐड किया। कूल है। हाय भूमि, क्लास की टाइमिंग 3 PM से है, फ्रॉम 3 PM। ओके, चलो अभी आपके लिए प्रैक्टिस है। नाउ यू हैव टू डू प्रैक्टिस। ट्राई आउट द फर्स्ट वन। जल्दी से सम बताओ, क्विकली टेल मी व्हाट इज द सम। जल्दी एड, सी एज मच एज यू कैन डू इट मेंटली, बट अगर मेंटली नहीं हो रहा है तो करो पेपर पे, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स सी हाउ मेनी कैन गिव मी द आंसर टू दिस। तो यहां पे क्या हो रहा है देखो, here you have 90 plus 9, 99 अप्रोक्सीमेटली 100, तो 1 आपने ऐड किया, वो आपको हटाना है। 1032 करेक्ट भूमि, सुपर। 1 आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है, दैट यू हैव टू रिमूव, सो दिस इज 100। 100 प्लस 125 इज 225, ये हो गया। 225 प्लस 54 इज 279। यस, 279 में से आप 1 निकाल लो तो 278 हो गया। 278 प्लस 754 करना है आपको, तो पहले क्या करोगे? इन दिस केस व्हाट विल यू डू? 200 प्लस 700, 900 अलग से रख लो। यस, नाउ यू हैव टू डू 78 प्लस 54 विच इज 80 प्लस 52। यस, 900 पे आप क्या ऐड कर रहे हो? 132, विच इज हाउ मच? 1032। यस, बहुत बढ़िया, 1032 इज राइट। ठीक है, अगला वाला ट्राई करो, ये वाला जल्दी से। ये आपको कब यूज आएगा? एवरेज निकालने वाले क्वेश्चंस, एवरेज निकालो, सम निकालो, वेटेड एवरेज, यस, इन सब में आपको ये बहुत हेल्प आएगा, एंड स्पेशली इन डीआई में भी ये बहुत यूजफुल है। चलो क्विकली बताओ सम क्या होगा इसका। जल्दी से गाइस अप्रोक्सीमेट करो, जहां जहां पर भी स्कोप है उधर उधर अप्रोक्सीमेट करो। अगर आपको कुछ बैलेंस आउट करना है अंदर में से, वहीं से बैलेंस आउट भी कर सकते हो, नो इश्यूज। लेट्स सी हु कैन आंसर दिस। एनीवन? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, फिर तो कैलकुलेटर में हो जाएगा। तो देखो 456 है, 2464 सही है भूमि। यस, 2464 इज राइट, वेरी गुड। 2454 नहीं, अभिषेक चेक करो। तो देखो यहाँ पे 456 है ना? अगर ये 455 होता, इफ